Hello everyone. Today we will discuss about a topic quadratic equation. Okay guys, quadratic equation. Before discussing about this topic quadratic equation, let us first of all I want to introduce all of you with a familiar topic. The name of this topic is polynomial. Okay, polynomial, because this quadratic term comes from the polynomial. So I hope you all guys are study about the polynomial. So what is polynomial? Any expression. The polynomial is a made up of by the two words poly plus nomial. So the definition of polynomial is any expression. The definition of polynomial is any expression, any expression, any expression which which can be written written as a1x plus a2x square plus a3x cube plus a4x to the power 4 plus a5x to the power 5 plus an x to the power n is called a polynomial polynomial of degree degree n. So let us I brief about the word degree. The degree is the highest power of an expression is called degree. Okay. So let me introduce about the how according to degree how we identify the polynomial. हम डिग्री के अनुसार पॉलिनोमियल को कैसे बांटते हैं? यदि किसी एक्सप्रेशन का डिग्री if the degree of any expression is 1, it is called linear polynomial, and if the degree of an expression is 2, then it is called quadratic polynomial. So let us discuss about the polynomial quadratic polynomial. I will not go the whole topic of this polynomial. I am just giving the brief about this topic polynomial because this quadratic equation is related to the chapter polynomial. That's why I am giving some definition about the polynomial. So the quadratic polynomial will be what I had say. I had said then an expression which has a degree 2, it is called quadratic polynomial. किसी एक्सप्रेशन को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तब बोलेंगे जब उस एक्सप्रेशन का जो डिग्री होगा ना वो 2 होगा. मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं. और जब यही एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर हो जाता है, तब हम इसे कहते हैं दिस एक्सप्रेशन becomes the equation, and this equation is known as quadratic equation. So we will come to the topic. अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ गए हैं. तो let us discuss something more about the topic. So let us discuss about the quadratic equation. We had discussed about that a how a quadratic polynomial becomes a quadratic equation. कैसे एक quadratic polynomial एक quadratic equation बनता है हमने वो देख लिया. मैं एक generalized equation लिखता हूँ कि कोई भी quadratic equation हो उसका generalized जो form होगा वो इसी तरह होगा. ओके. तो I am writing the generalized
generalized generalized equation generalized equation generalized quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, where 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 a not equal to 0. Give me a minute. Generalized form of quadratic equation, and it will be ax square plus bx plus c equal to 0, where where दिस कंडीशन मस्ट बी रिटन। इसको इस कंडीशन को लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इफ वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, मान लेते हैं ये यदि ए 0 हो जाता है तो क्या होगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो वाला जो टर्म हो गया ना वो 0 हो गया। तब यदि मैं पूछूं कि इस एक्सप्रेशन ये जो इक्वेशन है इसका डिग्री कितना, द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1, मतलब ये क्वाड्रेटिक क्या बन गया, अब एक लीनियर बन गया। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कंडीशन लिखना हमेशा अ, जरूरी है। और उसके बाद वेयर ए बी सी आर एनी रियल नंबर, ए बी सी हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है और रियल नंबर हमारा कांस्टेंट होगा, या फिर आप ए बी सी को एनी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। दिस आल्सो कैन बी रिटन। देखिए अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं कि ये तो हमारा जनरलाइज फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि एक इक्वेशन कैसे क्वाड्रेटिक होता है और उसका जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक होने का। अब इसी के बेस पे मैं कुछ एग्जांपल लूंगा। एग्जांपल, यदि मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो मैं पहला एग्जांपल लेता हूं। मैं पहला एग्जांपल, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, एक मिनट गाइस। पेन का कलर चेंज करता हूं। तो अब मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपसे ये पूछा कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। आपसे ये पूछ आपसे ये पूछा जाए कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप जो इस इक्वेशन है इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लाने की कोशिश करते हैं। what you have to do, you just expand in the form of a minus b whole square. I hope you know, you all of you know about the a minus b का whole square, means a square means x का square plus 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। Now x square minus 4x plus 3 equal to 0. Now you know the generalized form of a quadratic equation. The generalized form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. अब यहाँ पर आप क्या देखते हैं, a के जगह पर यहाँ पर क्या है, a के जगह पर यहाँ 1 है और b के जगह पर 4 है और c के जगह पर क्या है, 3 है और इक्वल टू 0। सो द गिवन एक्सप्रेशन या गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप
जो हमारे सामने गिवन इक्वेशन है हम उसको क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है। अब कभी कभी एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि कंपेयर, check the given equation is a quadratic or not. If it is a quadratic, then find the value of a, b and c. अब मैंने यहाँ पर यहाँ तक तो सॉल्यूशंस कर दिया। अब ए बी सी मतलब ए का कोएफिशिएंट कितना 1, बी का कोएफिशिएंट कितना -4 और सी का कोएफिशिएंट कितना 3। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं और एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, और मैं दूसरा एग्जांपल लेना चाहूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 पूछा है कि गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक और नॉट। अगेन you what you have to do, you have to just simplify the given equation and compare this equation to the generalized form of a quadratic equation. So just x square here, x square plus x plus 8, we know that कि जब भी कोई नंबर आरएचएस से एलएचएस में आता है ना तो साइन बदल जाता है। तो ये जो है ना इधर एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा तो -x स्क्वायर, और ये जो है -4 इधर आएगा तो +4। अब इधर कुछ नहीं बचा तो 0। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा मतलब माइनस हो जाएगा, तो ये बचा 0 प्लस एक्स रहेगा। 8 + 4 क्या हो गया 12 इक्वल टू 0। और सिंपली वी कैन से एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। और ये जो है ना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन एक एक क्या एक लीनियर इक्वेशन है। तो आई होप you all of you all guys are enjoyed this session. We discuss more about this topic in further classes. Thank you to watching my video.